Hi, good evening, everyone. Welcome to the Saturdays for Sustainability Learning, and where we always connected to understand sustainability in a holistic manner, holistic way. Usually, we talk about sustainability topics, but today it's maybe if you consider it as a related, or maybe for most of the people, we consider it as not related. It's about emotional health, mental health. So that's very important topic that we will be having today. And if you have joined this initiative for the first time, I'll take less than 30 seconds to discuss it. It's nothing but a mastermind group where we try to learn from each other. Okay, so that's the group, and that's Saturday is the most convenient day for all of us. So that's why we connect. And the basic foundation, two ground rules before we start is DIKW pyramid, that is data, information, knowledge, wisdom. So it's always like we have more data, more information in today's time than the knowledge and wisdom part. So we would like to get it from our guest speaker, the wisdom and knowledge that she has gained from so many years of her expertise. And second, this is a foundation because discussion and question and answer are the best way to learn. So please feel free to ask your queries, your doubts. Feel free to add your responses, add your experiences to this discussion that will enrich it. Okay. So please don't hold yourself back. Okay. All right. So that's it for today's discussion because it's really important that we cover so many things today. So today's topic is better emotional health, impact on individual and society. And I'm very grateful for Vanashri ma'am for agreeing to uh, coming to this session. She has wonderful experience, diverse experience. She is working as a mental health counselor and also she is a co-founder, Action for Social Reform. And she does lot of things. Okay, so she is a multitasker. She is a runner, she is a yoga enthusiast. She is into meditation. So a lot of things that she already tried, tested, and with her experience, her rich experience, we would like to understand about emotional health. So first, thank you so much, Vanashri ma'am, for agreeing to this session. Thank you, And sir. over to Thank you. you. We would love to learn from you. Good evening, all. And it's a really privilege to be here today. And this Saturday for sustainability learning. Even मेरा कहना ये है कि मेंटल हेल्थ है ना, ये हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएगा. True. So I really thank you for Kulkarni sir even uh, to giving me this opportunity. And today I think we will start okay slowly and how we will explore the emotional health, how it impacts us, and how it impacts on our individual health and plus the society. Nowadays, we can see the paper whenever we open. तो उसमें पेपर में पढ़ना मतलब एक काइंड ऑफ व्हाट यू के फोबिया डेवलप हो रहा है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है. रॉबरी आता है एंड स्नैचिंग मीन्स लाइक क्राइम्स, लिटिल लिटिल स्मॉल क्राइम से लेके बड़ा क्राइम्स. और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट आप देखते हो कि जितना वर्स्ट केसेस आप हम लोग पढ़ पाएंगे. और टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री करके एक आता था. आजकल स्पीकिंग ट्री का एक छोटा सा नन्हा सा कॉर्नर बन गया है जो फुल पेपर मतलब ऑलमोस्ट 4 पेपर का रहता था. तो उसके लिए देखा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ जो है वो ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुका है. कि इवन डब्ल्यूएचओ भी बोलता है कि वन ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड live with the mental health disorders. Then anxiety, depression, these are most common nowadays. Even in small children also they are getting. More women, like what you say, than men are affected by this. Okay. And the source भी तो है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एटलास में भी 2024 में भी हम लोगों को बहुत सारे डाटा मिलेंगे उसके रिलेटेड. एंड मेंटल हेल्थ इज नॉट अ प्रिविलेज बट इट्स अ बेसिक राइट में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे बिकॉज आई नीड स्पेस
because children are saying like that way each and every person needs space in the sense not from क्या बोलते हो अलग होके नहीं बट अपने साथ रह के ही हम लोग कैसे कर सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो shall I share with the PPT with this? Yes, ma'am, हाँ जी please. Let's start with a small what you say रे ऑफ होप जैसे जैसे डाकन इसमें रहता है तो हियर माई सेल्फ वाणीश्री the way this girl is spreading light same the way even I hope so I can spread the light to each and everybody's life. Why emotional health matters आप देख रहे हो mental health absence of illness its well-being and balancing तो हम लोग कैसे कर सकते हैं absence of illness as per WHO we know कि 4 lines are there like WHO says physical mental plus social physical mental social and spiritual well-being ओके नॉट मियरली डिसीजेस डिसीजेस से हम लोग नहीं बीमार होते हैं बट हम लोगों का साइकी बहुत पावरफुल है जिसको बोलते हैं हम अपना साइकोलॉजी ह्यूमन लाइफ आई थिंक ऑलमोस्ट डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज छोटी सी भी है उसकी एक छोटी सी सीड वो चाहे नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी इट ब्रिंग्स बिग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ डे टू डे लाइफ इवन बचपन से देखते हैं आजकल बच्चों में जितनी एंगर फ्रस्ट्रेशन या अनहैप्पीनेस दिखता है वो क्यों दिखता है बिकॉज दे आर नॉट इवन मीन्स उनको हम लोग बोलते हैं हम भी बहुत किए थे बहुत सब चीज किए थे हम लोग बहुत सहे थे हमको भी मार पड़ता था द लाइफ हैज चेंज्ड हम लोगों में उतनी ताकत भी थी ऐसे लगता है कि हम लोगों को वो भगवान का एक गिफ्ट था कि वो लोग इतना भी मारे तो हम लोग उसको भूल के फिर दूसरे दिन स्कूल जाते ही थे बट आज वन बीट चिल्ड्रन स्टॉप गोइंग स्कूल वाई ये सोचने वाली बात हो गया है क्योंकि जैसे हम लोग प्रेशर लाइफस्टाइल चेंज हो गया है हमारा बोथ मदर एंड फादर आज बोथ आर वर्किंग साथ में जो घर में जो व्हाट यू से एक एल्डरली पीपल जो रहते थे वो नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से तो इसको अब्सेंस ऑफ इलनेस में जिसमें होता है और इट्स वेल बीइंग कैसे लाएंगे और बैलेंस कैसे ला सकते हैं हम लोग वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ फर्स्ट उसके साथ साथ हम लोगों को डिसीजन है या रिलेशनशिप है प्रोजेक्टिविटी है यही है हम लोगों का इमोशंस जिस दिन हमारे इमोशंस मरे उस दिन इंसानियत भी मर गया बिकॉज वहाँ दया नहीं है भावनाएं नहीं है ना ही कोई किसी को कुछ होता है आजकल देखिए बच्चों को कुछ होता है तो दे विल नॉट गिव रिस्पॉन्स सडनली दे पॉज फॉर समथिंग सम टाइम एंड दे लुक कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज नथिंग जस्ट गो आप लोग देख रहे हो मतलब मैं भी महसूस करती हूँ आजकल इतना भावनाएं है ही नहीं है अगर हम लोग के अभी हम लोग 90 80s के भी हैं तो भी फिर भी हमको अभी भी लगता है कि वी आर स्टिल अलाइव आवर चाइल्ड इनर चाइल्ड इज अलाइव इनर चाइल्ड को कभी हर्ट नहीं करना है तो डिसीजंस क्या होता है वी आर प्रोलॉन्गिंग डिसीजंस जो है आज करेंगे कल करेंगे कभी करेंगे वहां प्रॉब्लम होने लगता है आज होगा होगा हम लोग जन जी को भी टारगेट करते हैं आजकल बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल उनमें पेशेंस नहीं है उनको मीन्स इंस्टेंट मैगी खिला खिला के आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग भी वो लोग भी इंस्टेंट बन गया है कि आज हम लोग गए तो वॉट एवर वी नीड दैट बट पेशेंस कम हो गया है तो उसके साथ साथ डिसीजंस का भी बहुत इम्पोर्टेंस लगता है कि क्विक डिसीजंस ऑलवेज जैसे मेरा एक जैसे मैं पढ़ रही थी अगर रामायण में लक्ष्मण जी अगर नाक काटे नहीं रहते तो रामायण हुआ ही नहीं रहता because his anger but his how why he is anger because his karma what you say previous karma even I go a little bit spiritual also karma mein means like he is a avatar of adishesha
Adishesha is means hissing, quick reaction. And we have all elements in us. Same the way. Yoga, during yoga, we do all type of yogas. क्योंकि why we are ultimately with the nature. बच्चों को मैं कभी कभी क्या बोलती हूँ कि हम लोग नेचर से कैसे अलग हैं। बिग बैंग थ्योरी गया भाड़ में बट हम लोग अभी कभी देखा जाए तो हमारा अज्जा जो है वो अमीबा लगता है कभी कभी, क्योंकि पूर्वज जो है, क्योंकि सेल मल्टीपल वो डिवाइड हो गया, फिर वो होते होते मेनी थिंग्स कम्स। तो वैसे ही हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं, तो अल्टीमेट हम में बहुत सारे गुण है। आग है तो उसी हिसाब से गुस्सा भी है, जल है तो उसी हिसाब से हम चंचल भी है और ठंडे भी हैं। और सेम द वे वायु है तो वो जितनी स्पीड जाता है वैसा ही हमारा माइंड और हमारा सोच जाती है। तो रिलेशनशिप में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। रिलेशनशिप में हम लोग कभी भी झुकते नहीं है, या अगर हर बार झुकना भी मना ये है, कभी बोलते हैं ना सहने वाले भी एक तरह के गुनहगार होते हैं, तो हर वक्त झुकना भी नहीं चाहिए। बट मेकिंग while टेकिंग डिसीजन in relationships we should be very careful, and it is a thin line. एंड प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? ये दोनों अगर अच्छे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी से आएगी। यहाँ पर कैसे प्रोडक्टिविटी? माइंड शांत रहेगा, इमेजिनेशन प्लस आइडियाज ज्यादा आएंगे। अगर डिसीजन में गड़बड़ हो गया, रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया, प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो में आके जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि देखिए ये पीपीटीज वगैरह छोड़ दीजिए, नेचुरली अगर देखेंगे तो हर घर में 2 लोग रहता है, 2 लोग से ही घर बन रहा है आजकल। पहले कैसे इट वाज अ जॉइंट फैमिली, बहुत बिग फैमिली की कोई कर रहा है अगर 10 लोग अर्न कर रहा है छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन में वो घर फुल रहता था। बट आजकल दोनों को हिसाब करके चलते हैं, तो हिसाब में अगर 1 रुपया इधर उधर हो गया जल्दी से झगड़ा शुरू हो जाएगा, ये कहाँ गया वो कहाँ गया। छोटी छोटी सी बात थी। हैप्पीनेस कहाँ से आती है तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे। तो एज पर WHO 1 in 8 people ग्लोबली स्ट्रगल विथ मेंटल हेल्थ challenges। क्यों? क्योंकि we are not control on our emotions, we are not control on our actions, and even we are not control on our thinking also sometime। Controlling in the sense to balance ourself means like हम लोग बोलते हैं जो 3 है, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। दिस ट्रायंगल को अगर हम बैलेंस करेंगे तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हेल्थ, ability to manage stress, anger, sadness, joy, self-awareness, knowing that we feel why, balance between thoughts, feelings, action, what just now I shared। क्योंकि फीलिंग्स आ जाते हैं, कभी गुस्सा आएगा, कभी दुख आएगा। यस, रोना है, ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़कियां ही रोना चाहिए, लड़के, क्योंकि वो लड़कों को भी हार्ट रहता है, उनको भी दुख होता है। बट जब तक वो पोर आउट नहीं होगा तब तक वो एक मतलब हैवीनेस बन के वो कहीं ना कहीं गुस्से में कन्वर्ट होके दैट कम्स अगेन इन लाइक डिप्रेशन। वो क्या बोलते हैं आप, आगे आगे के लेवल तक चला जाता है। तो ये सब चीज को भी हमको मैनेज करना चाहिए, जैसे फीलिंग्स को कंट्रोल करना। तो डेली एक्शंस फॉर इमोशनल हेल्थ, स्मॉल हैबिट्स बिग चेंजेस। चलो हम लोग, क्योंकि एज आई सेड कि वी आर काइनेटिक एनर्जी, वी नीड टू मूव। अगर एक जगह बैठेंगे तो हम लोग सड़ेंगे 100%। मेरा तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। सम टाइम आई जस्ट बी काम, कुछ नहीं करना है। आज मुझे कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज मेरा अगर काउंसलिंग हो गया है, बहुत हैवी हो गई हूँ मैं, मेरा हेड बहुत सारी चीजों से भर गया है, तो आई जस्ट टेक अ ब्रेक। जो भी आपको अच्छा लगता है, शांति से एक कोने में बैठ के खाना खा लो अच्छा से, और जाके ना 1 घंटे का लिटिल स्नैप, अच्छा सा नैप ले लोगे। एक नैपिंग यूर ऑलमोस्ट मतलब हल्का हो जाता है बॉडी। इसको बोलते हैं जैसे बिल्ली रात भर जग के जो मॉर्निंग अपना एनर्जी स्टोर करता है, अपना नेगेटिविटी जो बाहर भेजता है, सेम द वे वी आल्सो हैव टू डू। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मैंने ऑलमोस्ट अपने साथ करके देखा है।
बहुत सारे काउंसलिंग्स में बताती हूँ आपको एक छोटा सा एग्जांपल। 2005 I joined Karnataka State Council for Child Welfare where it was working for deprived children, जो क्या बोलते हैं आप, टोटली almost Orphans. children with crime and background। तो उसमें मैंने बहुत सारा चीज देखा, एज ऑफ 3 टू एज ऑफ 18, हाउ दे सफर, व्हाट इज देयर लाइफ। तो उसके बाद आई टुक अ डिसीजन कि मुझे भाई सोशल वर्क नहीं करना है, मुझे अब इनके साथ जाना ही नहीं है। देन आई स्टॉप्ड। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना जॉब को स्विच करूंगी, क्योंकि आई स्ट्रगल्ड मिनिमम 6 months टू कम ओवरकम फ्रॉम दैट ट्रॉमास। क्योंकि बच्चे लाइट भी देखते थे तो चिल्लाते थे कि लाइट मत लगाओ दीदी, हम लोगों को डर लगता है, बिकॉज दैट वाज आई एम टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ इमोशंस। But I have went through many cases regularly, means we are given some target to take केस स्टडीज। लाइक केस स्टडी मतलब मुझे लगता था कि भाई ये सुधरेंगे ही नहीं, किस किस को सुधारेंगे हम लोग, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे या हमारा एक्शंस नहीं सुधरेंगे, थॉट नहीं सुधरेगा, व्यूज नहीं सुधरेंगे, तो कभी सुधरेगा ही नहीं। हम ही इग्नाइट हो जाते हैं अगर आगे वाला गाड़ी वाला थोड़ा सा हमसे स्पीड गया या उसका गलती से कहीं लग गया, तो वी इग्नाइट वेरी सून एंड मारा पिटी पे ही उतर जाते हैं। वाई? व्हाट इज द इग्नोरेंस? ओके, वो काम से भी हैंडल हो सकता है अगर वो करना है तो, बट यहाँ पर आपका जो एनर्जी व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम बाय योर साइड और आपके अंदर से, वो एनर्जी आपको वापस दे रहा है। एक्शन के लिए रिएक्शन, जैसे हम थियरी पढ़ते हैं, सिंपल है, क्योंकि अगर मेरा एक्शन काम रहेगा तो आगे वाला का एक्शन भी काम हो सकता है आफ्टर सम टाइम। बट अगर इफ आई एम इग्नाइटेड, आई एम रूड, देन द अल्टीमेट एवरीवन इज नाउ रूलिंग बाय ईगो। मैं नहीं वर्ड यूज करती हूँ आजकल, ईगो स्टेटमेंट इज टोटली डिफरेंट। Egoistic person, he understand the situation, he analyze the situation, and he act as per. He is not, we cannot use that ego person. He is high, वो बोलते हैं ना हम लोग, उसको बहुत ईगो है। नहीं, अगर ईगो रहता वो ऐसे बिहेव ही नहीं करता। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड एंड माल फंक्शनिंग ऑफ हिज बिहेवियर, नॉट ईगो। ईगोइस्टिक पर्सन आर रियली डिफरेंट वे है, उसका टर्मिनोलॉजी इन साइकोलॉजी टोटली अलग है। जैसे स्मॉल हैबिट से बोल रहे हैं कि स्टार्ट डे लाइट डीप ब्रीदिंग ग्रैटिट्यूड। जैसे आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पे तो भरपूर भरे हुए हैं मेनी थिंग्स की मॉर्निंग उठो भाई जाओ। एवरी यंग चिल्ड्रन आर फॉलोइंग नाउ डेज, मीन्स लाइक यंग जनरेशन। मॉर्निंग 3:45 मतलब आप बोलते हैं ना जो मॉर्निंग का जो टाइम है, उसके साथ से जो आप उठते हैं वो लोग, वो उठने के बाद योगा करने से लेके अपना ओके सारा चीज शुरुआत, वो एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स से ले रहे हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट आई वाज टॉकिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस कि मैं अपना एनर्जी कैसे गेन करती हूँ। बचपन से मेरी नानी ने आदत लगा दिया था मुझे, एग्जैक्ट 4 o'clock शी मुझे उठा देती थी। और उसके बाद बोलती थी, टिपिकल हम लोग क्या बोलते हैं आप, पुजारी टाइप फैमिली से ही हूँ मैं। तो मॉर्निंग उठा के, वो भी प्यार से उठाती थी, कभी चिल्ला के कभी नहीं उठाई है। शी यूज टू ब्रिंग अ कटोरी ऑफ वाटर एंड उसमें से अपना फिंगर ऐसे ऐसे डिप करके शी वो आंखों पे भर के वो मुझे उठाती थी, चलो उठो हो गया अभी। तो उसके बाद मुझे फूल लाने भेजती थी। दैट फ्रैग्नेंस मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट ड्यू फ्रैग्नेंस, इतना खुश होता था। आने के बाद तुरंत हम लोगों का जो नहाना धोना होता था, फिर पूजा, पूजा के बाद 1 कप चाय, या उस वक्त हम लोगों को बोर्नविटा, बहुत प्योर बोर्नविटा था। अगर आपका एज पता नहीं है, आप लोगों का एज क्राइटेरिया क्या है, बट मेरे टाइम का बोर्नविटा अगर घोल भी रहते थे ना, तो बहुत दूर तक उसका स्मेल आता था। नो शुगर, उसमें शुगर बॉन्ड बहुत कम था। इट वॉज लाइक अमेजिंग टेस्ट, दैट फ्रेगनेंस स्टिल इट इज इन माई क्या बोलते हैं आप, माइंड में वो स्टोर है। और टिफिन बॉक्स जब ओपन करते थे, वो पोहे के साथ ओके बनाने के पीसेस रहते थे, और उसका एक अलग अलग फ्रेगनेंस। दीज ऑल आर चाइल्डहुड मेमोरी। ये चाइल्ड हम आते आते किल करते चले जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो गए।
हम अपने एजुकेशन में आ गए, घर से बाहर आ गए, या रेसिडेंशियल स्कूल्स आजकल बहुत फेस करता है। तो ये सब चीज़ से क्या होने लगता है, जो बच्चा मेरे अंदर था, वो मर जाएगा, इनोसेंसी जो था वो मर जाता है। और हम लोग एक अलग इस वर्ल्ड में ढालते-ढालते अपने आप को भूल के हम जो दिख रहा है, उनके जैसे हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट आई एम, आई रियली फॉरगेट दैट व्हेन आई एम ग्रोइंग। तो वो नहीं करना है हमको, हमको भूलना ही नहीं है। मैं जिस दिन अपने आप को भूल गया या जिस दिन अपने आप को भूल गई, तो समझिए कि मैं कोई और हूँ, मैं नहीं हूँ। तो इसी चीज़ से deep gratitude, thanks to the universe, thanks to the nature, which is giving us every day fresh breath, and wherever you feel, whatever you feel like, आपके पास में पेट है या बर्ड्स है या प्लांट्स है, every day, those all are not asking anything from you, but they ask your emotions there. That emotionally I really touch with them. Then r- writing something, अगर फीलिंग्स है, वो एक तो हम लोग पहले से डायरी राइटिंग था ही, क्या है हम में क्या नहीं है, बट आजकल हम लोग भूल गए हैं, कुछ और ही लिखते हैं। एक्सरसाइज भी है मूड रेगुलेशंस के लिए, और सपोर्टिव कनेक्शन सब आजकल सब लोग करता है। मॉर्निंग रनिंग, रनिंग कैसे करेंगे, कुछ भी दिमाग में कुछ और चलता रहता है, बिकॉज़ आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट कि मुझे ये करना है, मुझे दौड़ना है करके नहीं दौड़ते हैं, या मुझे रनिंग करना है, मुझे योगा करना है, उसके लिए नहीं। दिमाग में हज़ारों योजनाएँ आती रहती है, थी थॉट्स आर फ्लोइंग, उसमें हम करते हैं। और मेडिटेशन करना ये नहीं है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, स्टॉप नहीं करना है। वी कैन स्टे इन दी थॉट्स, मतलब उसको हल्के-हल्के से, मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट द थॉट्स फ्लो, जितना आता है ना, उसको आने दीजिए और उसको बहने दीजिए। बिकॉज़ अगेन आई विल से, बार-बार मैं बोलूँगी कि हम ही एनर्जी है, मैं तो यही बोलती हूँ। और बताया मैंने कि वैसे होके-होके मेरा आदत अभी भी है, चाहे मैं रात को 1:30 भी सोऊँ, मॉर्निंग एग्ज़ैक्ट 4 o'clock मेरा आँख एट एनी कॉस्ट खुल ही जाता है, जो बचपन से है। तो उसकी वज़ह से क्या होता है, मैं उठती हूँ, तो आई विल गो टू नेचर, फर्स्ट आई विल सी एवरीथिंग, ईच एंड एवरी, आई विल स्पेंड हाफ एन ऑवर, मोर देन 45 मिनट्स आई स्पेंड विथ नेचर मॉर्निंग। Wow. दैट गेव मी एनर्जी, क्योंकि मेरे घर में मिनी गार्डन, मिनी जंगल है। यहाँ सातारा ऑलरेडी जंगल है, उस जंगल में मैं अपने घर में भी जंगल बना के रखी हुई हूँ, जिसके साथ आई स्पेंड मोर टाइम, क्योंकि एवरी डे अगेन आई फील मीन्स जितना फेस करूंगी मेरा एनर्जी। देखिए, हम दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं यही कहने वाली हूँ। ये मैं हूँ, मेरा एनर्जी है जो मुझे वापस मिल रहा है। इस पे भरोसा रखती हूँ मैं, और वैसे ही जाती हूँ। बिल्ड सपोर्टिव कनेक्शन, कोई नहीं है तो भाई एक फ्रेंड रहना चाहिए, जिस वो ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, जहाँ आप ओपनली बहुत सारा चीज़ बोल सकते हो। आजकल वो ट्रस्ट मिलना मुश्किल है। सो एज़ अ काउंसलर आई एम रेडी टू टेक ऑल द थिंग्स। बच्चे बोलते हैं आप इतना सब कुछ सोचने के बाद मैम आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए, मैं मॉर्निंग सब तकलीफ ने मैं आई जस्ट ओके उसको गॉड के हैंड में दे के मैं फिर फ्री हो जाती हूँ, फिर नेक्स्ट तकलीफ लेने के लिए तैयार होती हूँ मैं। तो वैसे में मेरा ड्यूटीज़ रहते हैं, मेरा डे स्टार्ट होता है। एंड डिजिटल को हम लोग लिमिट कर सकते हैं अगर चाहिए तो। चाहिए तो कर सकते हैं, बट अगर हम में ही वो पेशेंस नहीं रहे तो हम कर नहीं सकते। वो हर एक चीज़ हमसे ही शुरू होती है। तो अभी प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? हर वर्ड में ये इतना बड़ा-बड़ा भयंकर वर्ड दिखता है, नथिंग। वो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे आजकल इंग्लिश में सारा वर्ड्स बोलते हैं कि जलेबी को कुछ और बोलेंगे। ओके, Yeah. सेम द वे दिस माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मीन्स हैप्पी बाय, आप अंदर से ही खुश रहना। ओके, हाउ इट्स इम्पैक्ट्स ऑन आवर इंडिविजुअल्स। ओके, हायर कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, हम लोग कौन है, क्या है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी फोकस क्लियर हो जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि हाई वाइब्रेशन पर पर्सन कहीं पर भी जाएगा ना,
वो पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करता है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगा, अगर स्माइल मतलब हंसना, दो तरीका है। एक ऐसे ही हंसना, एक ग्रैटिट्यूड वाला हंसना, मतलब उस हंसी से आगे वाले के दिन बन जाए, ऐसे हंसी, दैट इज रियली रियली गुड। एंड चेयरफुल नेचर रहने से ना, तो ऐसा नहीं है, लोग सोचेगा ये पागल है, हाँ रहने दो, पागल मैं अपने लिए हूँ। दैट्स व्हाई माय वाइफ्स आर inspiring you to be like me. Okay, we have to inspire. You should be the idol, not for मेरे लिए किसी आइडल को नहीं रखना है। मैं किसी और के लिए आइडल रहूं हर वक्त, वैसे मेरी जिंदगी रहना चाहिए। नॉट ड्यूअल लाइफ, सिंगल लाइफ, वट एवर यू आर हैविंग, जस्ट सेम वन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी वाला। मैं जो हूं मैं यही हूँ, ऐसा ही। ऐसा रहेंगे तो 100% आई वी विल लीव अवर लाइफ। मैं ये बताती हूँ कि हम लोगों को। और बेटर कोपिंग विद द स्ट्रेस, स्ट्रेस कोपिंग करने के लिए कुछ नहीं है, हमको झगड़ा करना ही नहीं है। आता है गुस्सा, चलो भाई आ गया आज, बट वही हम, अगर आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे कभी कभी, झगड़ा करने के बाद, बहुत चीज होने के बाद बोलते हैं हम, मैंने झगड़ा किया। अगर अगर कोई सेल्फ इवैल्यूएट करता है तो रेगुलरली वो सोचेगा आज मैंने झगड़ा किया, ये किस पॉइंट पे था, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। नुकसान मेरा हुआ, मेरे रिश्ते का हुआ, मेरा जो ट्रस्ट था वो ब्रेक हो गया। उसका नुकसान नहीं हो गया जिसके साथ झगड़े। ही हैज ऑलरेडी बिल्ड वन नेगेटिव पर्सनालिटी इन हिज माइंड कि she or he is like this way only, leave it, next time we can't gain। तो इवन नॉट टू सो, मतलब क्या बोलते हैं, इतना भी जिलेबी नहीं बन के रहना है कि सब लोग खाए। ओके, दैट वी हैव टू मेंटेन, दिस इज हाउ वी हैव टू। रिडक्शन इन रिस्की बिहेवियर्स, सस्टेन यूज एंड अग्रेशन। अग्रेशन को ही हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि कभी कभी क्या लगता है कि आगे हम देखते हैं कि भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ, एवरी डे आई डू मेनी थिंग्स, बट समटाइम आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली। हाँ, यू विल गेट, बट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर नॉट आस्किंग प्रॉपरली, और यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली फॉर दैट। तो ऐसे होता है। तो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी तो आप देख रहे हो, गली गली में क्राइम्स है। बच्चे तो, उनका आइडल कौन है पता नहीं, माँ बाप को भी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब डिफरेंट है। और प्रोडक्टिविटी और वर्कफोर्स हम लोगों का कम हो ही जाएगा 100%, और अदरवाइज इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा हम्बल रहेंगे इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा सॉलिड रहेंगे तो जॉब ही नहीं रहेगा, और प्रोडक्टिविटी तो दूर की बात है। एंड सेफर कम्युनिटीज, जो हम लोगों को मिनिमम मिनिमम लोगों को रखिए, 4-5 लोग जिसके साथ आप बात करने से उनसे भी आप कुछ सीख रहे हो, और उनसे भी आप इंस्पायर हो रहे हो, और आप उनको भी इंस्पायर कर रहे हो। लिमिट करो। और लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब बाहर से हम लोग जो अंदर ले रहे हैं उससे अच्छा कि वी कैन हैव हेल्दी फूड। व्हाट आई लाइक मोस्ट, आपको बताती हूँ। टिल एट द एज ऑफ 46, मेनी पीपल आस्क कि जैसे ही जाती हूँ, मैम आपको शुगर होगा, अभी इतना टेंशन लेते हो। नहीं, मुझे ना शुगर गॉड ने दिया, ना थायराइड दिया, कुछ नहीं दिया। गॉड को मैं इसीलिए शुक्रिया अदा बोलती हूँ कि भगवान आपने अभी भी ऐसे रखा है, इतना सारा होने के बाद भी, उसके लिए थैंक यू। बिकॉज गॉड कहाँ है पता नहीं, बट स्टिल he is around us, he is in us, तो we have to thank him। मैं इस पे बिलीव करती हूँ। एम्पैथी एंड इंक्लूजन, यस, इफ एनीबडी इन नीड, चलो आज हम लोग 2 रुपया भी दे रहे हैं या 1,000 रुपये भी दे रहे हैं, चलो 1,000 रुपये, ये एम्पैथी नहीं हुआ। जैसे हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल कम इसमें, तो वी हैव टू मेक समथिंग लाइक दैट वे। गिविंग से अच्छा है कि उसको कुछ सस्टेन कर दो, कि वो हमको वापस ना दे तो भी चलेगा, बट वो अपना सरवाइव करे। ऐसे मैं पॉलिसीज चलाती हूँ, कहीं पर भी हो, कोई भी है मांगने आया, भाई तुमको इसके लिए चाहिए ना, इसके बदले में भाई इतना ले लो, कुछ चालू कर दो। तो किए हुए हैं बहुत सारे लोग। तो रेजिलिएंट यूथ, स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। रेजिलियंस इसके लिए चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, आजू बाजू कुछ हो रहा है, नो वन बॉदर्स कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट पहले हम लोग आराम से, मैं किधर भी जाती थी,
मैं क्यों मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि जितना सेफ्टी उस वक्त था, उसके मतलब सेफ्टी का नाम अभी कहीं नहीं है, ना ही चाहे लड़कों के लिए, चाहे बच्चों के लिए, किसी के लिए भी। उस वक्त आई यूज टू गो करवंद, आप सब लोग जानते होंगे करवंद, और क्या बोलते हैं, बेरी, Yeah. जो इसमें मिलता है, ब्लैकबेरीज नो, जो ये पहाड़ों में मिलता है, उसको ढूंढने जाती थी मैं। तो और सेफ घर भी आ जाती थी, लेके आके ड्रॉप भी कर देते थे। अरे इनकी बच्चे यहाँ हैं, चलो साइकिल पे लाके ड्रॉप करे। बट आज ऐसे कोई बच्चा जा सकता है क्या? ये भी है। तो रेजिलिएंट फ्यूचर ये करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। अभी हम आएंगे एस मेजर पॉइंट है ये, क्योंकि सितंबर इज वी आर थिंकिंग दैट सुसाइड प्रिवेंशन मंथ। देख रहे हो आप यहाँ पर कि एवरी 40 सेकेंड्स मीन्स वन लाइफ इज लूजिंग। जब तक भगवान, वो क्या बोलते हैं, भगवान भगवान बहुत बोल रही हूँ, आप माइंड मत करो। बट मेरा कहना ये है कि लाइफ जो है वो एक बार मिला है, उसको अपने हाथ से मारने से अच्छा है कि लेट फेस द प्रॉब्लम। अगर ये जब जिस दिन आएगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जो बोल रहा है कि भाई आज मुझे 5,000 रुपये चाहिए ही, उसको बोलो भाई 2 दिन रुको, आई कैन मैनेज एंड आई कैन गिव यू। इसके लिए चोरी नहीं करना है, वाइज डिसीजंस लेना है। इसीलिए वो पहला जो 4 पॉइंट्स थे, जैसे डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, और हाउ वी कैन प्रोडक्टिविटी, तो इस मामले में अगर हम वर्क करेंगे तो हमको ये जो चीजें हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसका नौबत ही नहीं आएगा। हम बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं। मैंने वही बोला, नॉट टू डू, ओके, जो नहीं करना है वो माइंड जल्दी ग्रास्प करके उसी को करने पे मजबूर करता है। तो आप देख सकते हो कि इंडियाज रियलिटी क्या है, ओवर 1.6 लाख सुसाइड्स एनुअली, ओके, एनसीआरबी ने रिपोर्ट किया है 22 में। और स्टूडेंट्स का डेथ देखिए, जो रियल में यंग जनरेशन, जिनको जीना चाहिए, जिनका ब्यूटीफुल लाइफ है आगे, बिकॉज कितना कॉमन रीजन है, एग्जाम स्ट्रेस एंड प्रेशर। वाई? फियर, अ बिग फियर एंड फेल्यूर। फेल्यूर अगर होंगे तो वापस वो लोग खड़ा हो सकता है। एग्जाम किसने बनाया, किस लिए बनाया, वी नो एवरीथिंग, ओके। बच्चे शो वो इस पे ढूंढते रहते हैं कि कौन एग्जाम बना है, उसको मिलने दो। बट इट वाज फॉर, आई थिंक, prisoners, to just give a type of punishment. But now it is really every day children are facing this punishment, and हम लोग भी उससे बाहर आए हैं, हम फेस करके अभी बाहर आए हैं। अभी भी हम लोग अपना करियर बनाने का कोशिश में ही है। Okay, these are number, as we say, they are lives, families and futures lost. Withdrawal, helplessness, hopelessness, talk of death, giving way to belongings. मुझे ये बहुत बुरा लगता है। सिचुएशन एक फैमिली का ऐसा आया था जब मैंने काउंसलिंग किया था। उनकी मदर ने डिसाइड कर दिया था, मेरे चारों बच्चों को आई विल जस्ट पुट अ पॉइजन एंड लेट एंड ऑफ ऑल द थिंग्स, बिकॉज ऑफ पावर्टी एंड दैट हस्बैंड इज हाई अल्कोहलिक पर्सन। व्हाट, मतलब उसका प्रिवेंशन कैसा रहना चाहिए? बट मदर वॉज वेरी स्ट्रांग लेडी, शी थॉट, बट उन्होंने आया मिला तो उन्होंने उसको ड्रॉप किया। बट उसके बाद दे आर वेरी हैप्पी फैमिली नाउ। एक्चुअली दे उन्होंने उस दर्द को फेस किया, छोटा मोटा उन्होंने एक स्टार्टअप्स ओन किया, all the dues, everything they have maintained, now they are really happy family। इनको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चाहिए। जी, काउंसलिंग में मेरा एक्चुअली मेजर काम ये रहता है कि वट एवर यू हैव नो, ओमिट दैट। पहले ओमिटिंग होने तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम पे वर्कआउट करेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सोल्यूशन है। वहीं पर है, तो उस पे वर्कआउट करेंगे। तो उसके साथ साथ उन्हीं से मैं पूछती हूँ, अगर ये चाहिए, ये सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, जस्ट इट वर्क्स। तो होप सो। कोटा का आप एग्जांपल देख सकते हो कि कोटा पे मेरी एक सिस्टर इन लॉ की बेटी,
वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की और मुंबई में काम करती है वो भी। शी आस्क्ड मी कि मामी कुछ है तो आप बताओ मुझे, आई विल वांट टू डू रिसर्च। तो उसको मैंने कोटा का ही रिसर्च करने के लिए दिया था एंड शी डिड वेरी नाइसली, दैट वेंट वेल। वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? देखिए, सुसाइड करने के लिए सडन विथड्रॉवल, आइसोलेशन शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग पेरेंट्स हैं तो बच्चे हैं तो हमारे, ये सब बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। सडन चेंजेस इन बिहेवियर इन द सेंस, वो लोग अग्रेसिव रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हर एक चीज को नेगेटिवली लेगा। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग ज्यादा पैम्परिंग भी करेंगे ना तो वो भी होता है। चिल्ड्रन लाइक अ स्प्रिंग, उसको ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है। लेट देम मैनेज, उनको टास्क दीजिए। इसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं अब्रॉड में क्यों कम है वहाँ पर, 8 साल के बाद पॉकेट मनी इज़ नॉट गिवन बाय पेरेंट्स। दे वर्क फॉर themselves, दे अंडरस्टैंड एग्ज़ैक्टली हाउ मच कितना उसमें एफर्ट लगता है अर्निंग मनी, सो दे डू दिस। देन टॉकिंग अबाउट होपलेसनेस, ऑलवेज क्या है, कुछ नहीं है जिंदगी में, बस ये वर्ड जब आपके समझ में आएगा ना तो जस्ट स्टार्ट डीलिंग विद देम। गिविंग अवे पर्सनल बिलोंगिंग्स, अगर कोई भी चीज बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं, अगर वो किसी को दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि नाउ दे आर ऑन दिस स्टेज, क्योंकि वो लोग अपने आप को विथड्रॉ करना चाहता है कंप्लीटली ऑन फ्रॉम अर्थ। तो ये सारे साइंस है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं, अरे रे, उनको हम लोग एक्चुअली वही बोली कि कोई भी टीचर्स को हमें बोलते हैं ना कि सर ऐसे हो रहा है, दो दो दे दीजिए सीधा हो जाएंगे सब चीज, हमको कितने मारते थे, ठीक है। Yeah, that's a common हाँ, feedback कॉमन that we आंसर। receive regarding, yeah. जी जी, कुछ नहीं, हम लोग कितना मार खाए हैं, कितना मार खाए हम लोग, हम तो कुछ नहीं हुए। बट स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग एंड द चिल्ड्रन, व्हाट यू से दैट ग्रास्पिंग कैपेसिटी, जिसको सोशली जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उनको पोल्ट्री बना के रख दिए हैं। पोल्ट्री मुर्गियाँ कैसे रहते हैं, अंदर ही रहता है, अंदर ही खाता है, मतलब उनको ज्यादा कोई भी कष्ट नहीं है। वट एवर दे आस्क, पेरेंट्स आर गिविंग नाउअडेज, व्हाई? बिकॉज हम लोगों को नहीं मिला करके। पेरेंट का आजकल का क्या है, एक कॉमन सेंटेंस है, हम लोग बहुत सफर किए, हमको कुछ नहीं मिला, आज इनको जो चाहिए हम लोग ला के दे रहे हैं। उनको आज आईपॉड चाहिए, आईपैड चाहिए, या मोबाइल, कोई भी गेमिंग है परचेज करके देने के लिए भी रेडी है, चलो परचेज कर लो कि खेलने दो। यस, बट वेदर यू आर ऑब्जर्विंग, जजमेंट होने के लिए, मतलब कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बोलना है कि भाई नहीं होगा, ये कुछ नहीं है। डोंट बी, एनकरेज देम, ओके, प्रोफेशनल हेल्प, जैसे जैसे हम लोग करते हैं उनको, उनको एनकरेज करने के लिए हमारे पास भेज दीजिए, वी विल एनकरेज अल्टीमेटली। देन क्रिएट सेफ स्पेसेस एट होम, स्कूल एंड वर्क प्लेस। स्कूल में मुझे तो लगता है कि इवन मदर्स भी आजकल इरिटेट होने लग गए हैं मेनी थिंग्स में, आप देख रहे हो। पहली बार मतलब मैं पढ़ रही हूँ कि मदर ही अपने बच्चों को हार्म पहुंचा रही है, मार रही है फ्रस्ट्रेट होके। बट मदर का एक स्टेट है, बिफोर, वो भी एक साइकोलॉजी है, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, दे गो फॉर ट्रॉमा पीरियड, क्योंकि फैमिलीज वैसे नहीं रहे, इनटेक हमारी फूड स्टाइल चेंज हो गया है, इनटेक जो करते हैं हम लोग, और सपोर्ट कम हो गया है। हर कोई चाहता है कि भाई अब तुम आ गए, तुम करो, ओके, अब मेरे से भी नहीं होगा। ये मतलब वर्क बैलेंस, फैमिली, फिर फैमिली के उन लोगों का अपना रिलेशंस, इनको बैलेंस करते करते उन लोगों का रेस्टलेसनेस, वो उनको मतलब वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होके वो भी प्रॉब्लम आजकल आ रहा है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, वर्क वर्क प्लेस में तो कोई समझेगा भी नहीं कि क्या चल रहा है। देन अवेयरनेस एक्टिविटीज क्या हो सकता है, येलो रिबन वॉल्ट, जैसे कि हम लोग बांध देते हैं, जैसे अभी चल रहा है, हर एक स्क्रीन पे वो टैग बना के डाल देंगे, या एक तितली येलो कलर का कोई भी चीज है जिससे माइंड फ्रेश रहे। येलो अल्टीमेट गोल्ड एंड सनशाइन कंपेयर होता है, उसको देखने से हम लोगों का कलर थेरेपी भी आजकल आया है। मतलब आप कलर थेरेपी भी देख सकते हो कहीं पर, जो भी कलर है जो अट्रैक्टिव है, जो सूदिंग है आंखों के लिए,
दैट गिव्स मोर मीन्स लाइक अंदर ही चेंज होता है। कलर थेरेपी है और आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी और साथ में व्हाट यू से दैट वन, क्या बोलते हैं आप, एसेंस। एसेंस व्हाट वी इनटेक, जैसे वेनिला है, रोजेस है, दीज एसेंस आल्सो बूस्ट गुड वेलनेस इन अस। हम लोग एप्पल खाते हैं तो उसका कभी खुशबू देखे हैं क्या कि ये एप्पल कौन से खुशबू में आ रहा है? कितने लोग आप रियल में महसूस किए हो बताइए? एप्पल खाते वक्त खाना है करके खाते हैं या एप्पल में जो एसेंस है, जो एक अच्छा सा सूदिंग सा एक फ्रेगनेंस है, आप कोई उसको देखे हो? अगर आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा तो। मैंने नहीं देखा, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्या खाऊंगा तब जरूर खाते वक्त ऑब्जर्व करो देखूंगा। उसको, अरोमा टेस्ट फील करूंगा। थेरेपी, करो सर। अरोमा थेरेपी। हाँ, अरोमा थेरेपीज या अरोमा थेरेपीज, हाँ आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि आजकल क्या क्या रोजमेरी, रोजमेरी अरोमा थेरेपी में बहुत ये है, बट इवन सम फ्लावर्स आल्सो, लवेंडर, आप देख लीजिए अरोमा थेरेपी मतलब खाने के थ्रू भी हम लोग ले सकते हैं इसको। देन स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज नोट पॉजिटिव मैसेजेस फॉर पीएस। बड़ी चेक, एक बड़ी रहना चाहिए, मैं ये बताती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, एक ऐसा बड़ी ये कर लो जैसे हमारे सारे चीज उनसे मैच हो, तो बड़ी जरूरी है। देन पीपल, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स और इंट्रोड्यूसिंग ब्रीदिंग। सांस लेना, कैंसर पेशेंट्स क्यों इतना मतलब बढ़ गए हैं? हम सांस तो लेते हैं बट उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, उसको सप्लाई नहीं करते हैं ईच एंड एवरी सेल्स में। इसीलिए ऑक्सीजन को इतना पावर है कि वो अल्टीमेटली कैंसर का सेल को किल कर सकते हैं। इसलिए योगा में वो मेडिट अभी वो भी शुरू हो गया है कि हम लोग ब्रीदिंग और भ्रामरी जो आटो प्राणायाम है, अगर उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और उसको हर एक बॉडी का सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली we will reduce cancer also and we improvise our this thing. This is actually from one number I got from this one. ओके, तो अगर मतलब वहाँ हेल्पलाइन ऐसे हर जगह होता है, हर एक एरिया में हेल्पलाइन होता है। एक्चुअली मैं बैंगलोर का एक बात बताती हूँ, बैंगलोर में जब मैं वर्क करती थी, वहाँ पहले एसटीडीज रहते थे, पता है, बूथ्स, टेलीफोन बूथ्स, वहां पे मैंने देखा था, आर यू वांट टू कमिट सुसाइड, प्लीज कांटेक्ट दिस नंबर। ओके, मैनी कॉल्स दे रिसीव्ड। अब सन मने मीन्स मैनी, जैसे आप 1908 वैसे सम नंबर्स वर गिवन, तो उससे हम लोग एटलीस्ट रेस्क्यू कर सकते हैं अगर किसी को, या एटलीस्ट उनका कैथारसिस जिसको बोलते हैं, जो एम्प्टी करना है उनका मन को हल्का करने का प्रोसेस हम लोग वहां से भी कर सकते हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज क्या हो सकता है? एनकरेज ओपन कन्वर्सेशन, ब्रेक स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि काउंसलर के पास बच्चे भी नहीं आते हैं, आपको मैं बताती हूँ, स्कूल में काउंसलर है मतलब उनको लगता है कि काउंसलर नहीं जाना है, साइकेट्रिस्ट है नहीं जाना है। ओके, साइकेट्रिस्ट से पास नहीं जाना है, दैट इज योर प्रॉब्लम। अगर रेफर किया तो जाना ही पड़ेगा। तो एक बार अगर पता चल गया कि वो मेंटल हेल्थ मतलब साइकोलॉजी डील करते हैं, तो उनको लगता है कि हम पागल ही हो गए हैं। पहले ये चीज को हमको हटाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ वाइज, जैसे डॉक्टर फिजिकल हेल्थ के पास जाके हम लोग, मेरे लिए यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, अवर बॉडी ईच एंड पार्ट्स ये मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, क्यों दुख रहा है। इसके लिए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सातारा में एक मैडम है, शी वाज अ बीएएमएस, एंड वंस आई जस्ट मैंने वो विजिट किया था, तो वो बोले कि मैम आप यहाँ बैठे रहो क्योंकि तब तक मैं थोड़ा सा पेशेंट्स है उनको मैं देखती हूँ। आई थिंक मोर देन 8 to 9 लेडीज ड्यूरिंग आफ्टरनून टाइम दे यूज टू कम, मॅम मला कसं तरी वाटते, मीन्स कसं तरी म्हणजे काय नक्की, मीन्स वो पूछते थे कि एग्जैक्ट व्हाट क्या एग्जैक्टली हुआ? हैपनिंग, कुछ नहीं, कसं तरी वाटते हैं। आणि प्रॉब्लम क्या है कि मैं भी सुबह उठती हूँ और वो भी सुबह उठती है, बाजू वाली मैडम हमारे साथ में है,
उनका काम जल्दी हो जाता है और काम के लिए भी जाती है और वापस भी आती है, फिर वो उतनी में एनर्जी में रहती है। बट मुझ में वो नहीं है। सी देयर आई एम ऑब्जर्विंग पीपल बट आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन मी। तो क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ मुझे ही पता नहीं है। तो ऐसे ही मैनी चीज मग कसं तरी वाटते मीन्स क्या है नक्की? तो ये है कि हमारा बॉडी साइकोलॉजिकली जो भी हम लोग सिचुएशन से गुजरते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट्स आल्सो सेम वो लोग भी वहाँ से ही गुज़रता है। बट वो लोग पेन से हमको पता चलाता है कि मुझे पेन हो रहा है। बट साइकोलॉजी में हम किसी को बता नहीं सकते कि मुझे कहीं तो कहीं मेरा इमोशंस हर्ट होके हम भी पेनफुल है। बट ज़्यादा हम लोग इमोशन, इमोशन बोलने लगेंगे, तो हमारा फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत सारे हैं। इसीलिए बहुत क्रिटिकल है। क्या बोलते हैं धरी यानी क्या बोलते हैं पुली? बोलते हैं ना इस साइड में अगर ट ये है तो इस साइड में गड्ढा है। कुछ तो कहावत है ऐसे। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। दोनों साइड हर एक फ़ील्ड में कॉन्सिक्वेंसेस बोथ साइड है। तो उनको देख के बैलेंस करना। ट्रेन टीचर्स, लीडर्स, पेरेंट्स एंड इमोशनल फर्स्ट एड। इमोशनल फर्स्ट एड में ये है कि पहले आप उनको एम्पैथी के थ्रू बात कर लीजिएगा। उनके मन को हल्का करने का कोशिश कीजिए। ट्रस्ट बिल्डिंग तब होता है जब हम वो बात कहीं पर जाके किसी को बताएँगे नहीं। उनका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं बट वी कैनॉट ओपन दैट बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी वो हम लोगों का हर एक प्रोफेशन का अपना एक प्रिंसिपल है। तो स्कूल में वर्क प्लेस में वेलबींग प्रोग्राम्स होते हैं। मैं तो हर ये अक्टूबर मेरा मंथ चलेगा अभी वीक पूरा। बच्चे अपना मन में जो आएगा लिख के वहां पर चिटका के चले जाते हैं। मीन्स आई डू रेजिलियंस वॉल एंड ट्री मेनी थिंग्स एक्टिविटीज आई टेक एंड दे ओपनली बच्चे बोल सकते हैं वहां पर। और मैम क्या प्रीवियस स्लाइड पे 1 मिनट थोड़ा सा हम और देख सकते हैं। जी जो जी ब्रेकिंग स्टिग्मा जो है ना, तो मुझे लगता है जी ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक बुक में पढ़ा था जी कि जैसे अगर किसी को डायबिटीज है जी या किसी को ब्लड प्रेशर है, जी तो अगर कोई हमारा रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल में है, हाँ हाँ तो जनरली हम उनको ऐसा नहीं कहते कि ये सारा तुम्हारे ही सोच की वजह से ये हो रहा है। हाँ हाँ जनरली नहीं सो जी जनरली हम क्या कहते हैं कि अच्छा डायबिटीज है तो वी शुड स्टॉप कंसल्ट अ ईटिंग डॉक्टर। शुगर। हाँ अगर बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर बट यस स्पेशली फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज, generally we give suggestion that it's because of your thoughts and you should change it. हाँ But as a person cannot change his or her blood pressure just by thinking. यस Because अगर ज्यादा है तो मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। हाँ uh, मेडिकेशंस मेडिकेशंस आपको मैं एक और बात बताती हूँ। मेडिकेशंस क्या है ना, हम्म, वी आर चीटिंग अवर साइकोलॉजी। सी आप कितनी भी बुखार आया है आदमी यहाँ से उठ नहीं रहा है बेड से। अब देखो उसको सिर्फ एक बात बोलो कि आपको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। ऑलमोस्ट 25% ही हील्ड। देन टेक हिम टू द हॉस्पिटल और वहां पे वो जो पर्ची देखेगा मीन्स द केयर व्हाट यू आर गिविंग। सी यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर आस्किंग हिम कि आप बहुत दुख में हो, अब चलो हम लोग लेके जा रहे हैं, बहुत प्यार से ले जाते हो और 5 दिन का एंटीबायोटिक्स या कुछ भी मिल जाता है एक वो क्या बोलते हैं 6 दिन का। उसमें हम क्या करते हैं टाइमली उनको मतलब अटेंशन देते हैं, उनको yeah, खाना देना, गोली देना, रेस्ट करो बोलना। ऑलमोस्ट वहां से आने के बाद वो 50% हील हो गया। ये जो 25% आफ्टर कमिंग मतलब हॉस्पिटल से जो होता है केयर, ऑलमोस्ट ही इज 100% बिकॉज ही स्पेंट मनी, ही वेंट एंड विजिटेड एंड एवरीवेयर ही और शी टेल कि मैं आज जहाँ अस्पताल गई थी मैंने इतना सारा हो गया, मेरा बच्चा लेके गया है, मेरी बहू लेके गई, मेरी बेटा लेके देखिए द केयर व्हाट यहाँ हर एक चीज में क्या दिख रहा है, एक केयर दिख रहा है। correct. यहाँ हील हो गया, यही तो बोलती हूँ साइकी इज रियली हमारा साइकी जो है ये मंकी मंकी ब्रेन जो बोलते हैं हम लोग, ये सीरियसली मंकी है कि हमको उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको क्या खिलाना है, उसको क्या नहीं खिलाना है, ये हमारे ऊपर ही लगता है। वी शुड डिसाइड दैट कि मैं क्या हूँ। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूँगा, मैं कुछ कभी भी दूसरों को हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता। मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ। जब तक और मैं गोली दी, अगर मैं गोली खाऊँगा ही नहीं, कहीं वर्क होगा ही नहीं।
मैं सुनूंगा, मोटिवेशन दे, मोटिवेशन। हाँ, 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा लग गया, मूवी देख के आ गए, 3 मिनट में 3 दिन के लिए मैं फुल हीरो हूँ, बट फिर चौथा दिन से मैं वही आदमी हूँ जो हूँ। दैट्स वाई आई माई सेल्फ इज माई हीरो। इसीलिए वो इकिगाई जो है उस बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, जो बुक्स जो आते हैं, रियली दीज आर रियली गुड मटेरियल्स, कि हम लोग पढ़ेंगे, अपने आप को फील करेंगे, दैट मोमेंट। हम लोग अननोन वर्ल्ड में जीते जीते एक मुस्कान रहता है हल्का सा, आप देखो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उस कैरेक्टर को हम महसूस कर रहे हैं, तो व्हाई कांट वी रियली वर्क इन आवर लाइफ। वी ऑल आर, क्योंकि जितने भी मूवीज बने कोई ना कोई कैरेक्टर को लेके बना, बट वो कैरेक्टर रियल में है नहीं, बट व्हाई इज अ वन ऑफ अस। So you are also most important because you are energy. Again, that word I'm going to use. If you produce positive energy, you are going to get all positivity. Means हमको हर एक चीज में अच्छा लगेगा। अरे ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, इतना है, इधर कर दो, हो गया। अगर नहीं है, ये क्या है, कंप्लेनिंग स्पिरिट आ जाता है हम में। ये वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो लाया, उसने ये किया। वो एक मेंटालिटी जो है ना, इसको चेंज करना है, ये हम इंडिविजुअल से ही शुरू होना है। मैं चेंज हूँ, मेरा नजरिया चेंज है, मेरा थिंकिंग चेंज है। तो ये स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए मैं हर एक को जब बताने जाइएगा ना, पहले ये सब चीज कहाँ था, जितना हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे, टैगलाइन करेंगे, उतना प्रॉब्लम हमको दिखने लगेगा। At the age menopause were there before, प्री पोस्ट सब था, बट Right. वहां का उस वक्त का एनवायरमेंट, फूड सिस्टम, कल्चर एंड घर का जो माहौल था और बाहर का माहौल था, वो अल्टीमेटली अलग था। आप देखो, एक लड़की से ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, आई रियली फील प्राउड। अगर एक लड़की है, अगर वो घर से बाहर निकलना है, तो कोई ना कोई साथ जाता था। एंड और एक लिमिट था हर एक चीज का, और खाना भी बहुत ही सफिशिएंट, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड, मतलब नीचे ही बैठ के खाना है, यही सब चीज खाना है। बट आजकल क्या खाते हैं हम, कहीं पर भी रुके हैं और मतलब इमरजेंसी, बिकॉज वी आर वर्किंग, लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड टोटली। हम लोग, हमको लगता है कि ये मैडम वही बोल रही है जो हम करते हैं, बट नहीं, हम ये छोटे छोटे चीजें हैं, इसको अगर हम गौर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मुझे अगर कोई भी चीज रहेगा, मेरा खाना मैं कभी भी खाऊं, व्हाटएवर आई ईट, मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे भाकरी अगर रहेगा तो चटनी, और उसमें अगर कुछ नहीं है, आज सिंपल सा राइस लीजिए, घी डालिए, लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट, इतनी टेस्टी लगती है। वो मुझे लगता है कि मैं आई एम कंप्लीटली तृप्त, मतलब सेटिस्फाइड। तो जब तक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, तब तक हम बदल नहीं सकते। ये जो स्टिग्मा है, हमको हाईलाइट करना बंद कर देना है। चलो, हम लोग इसीलिए इवन स्कूल में वेलनेस टीचर्स कन्वर्ट हो गए, मीन्स काउंसलर्स को मॉडिफाई करके अभी वेलनेस टीचर्स ऐसे उसका टर्मिनोलॉजी ला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं, काउंसलर के पास नहीं जाना है। मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी फाइन। अरे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई कैन गाइड यू, अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, ऐसे मैं बुला भी नहीं सकती, बट जैसे ही उनको रेफर किया जाता है टीचर, कि इसका क्लासेस में थोड़ा सा लो है, एनी प्रॉब्लम, मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स रेज हो जाते हैं धीरे धीरे। वो लोग जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, एवरीथिंग कम्स आउट। वो तब तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही है, इसके लिए अनदर 5 to 10 years लगेगा इंडिया में इस स्टिग्मा से बाहर आने के लिए सर। ऑलमोस्ट लोग अभी जा रहे हैं, और दे आर अंडरस्टैंडिंग द रियली, साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट क्या कर रहे हैं, काउंसलर्स के पास भेज रहे हैं। बट आप भेजने से अच्छा है कि पहले अपना घर का जो एनवायरनमेंट है और मेरा बिहेवियर है, जो हम लोगों का बिहेवियर है, इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ये स्टिग्मा इजीली ब्रेक हो जाएगा। वो स्टिग्मा स्टिग्मा ही नहीं लगेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, कि वो रूटीन चलता जाएगा। तो यही है। तो एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा सर? No, that's it, ma'am. जी, जी, वी कैन वी मूव लिटिल। ये है, मैसेज है कि
टेक अवे मैसेज है मेरे तरफ से सबके लिए कि बेटर इमोशनल हेल्थ स्टार्ट विथ यू एंड इट्स इम्पैक्ट मल्टीपल इन सोसाइटी. केयर फॉर योरसेल्फ, सपोर्ट अदर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्गर. बिकॉज मैं रहूंगा तो दुनिया है, मैं नहीं हूं तो दुनिया भी नहीं है. मेरा कंसेप्ट यहीं पर होता है. अगर मैं मर गई तो हो गया कि आई कांट सी एनीथिंग, इवन आई कांट एंजॉय एनीथिंग. बट इफ आई एम अलाइव, बट फॉर सम पर्पज आई एम अलाइव, सो आई हैव टू कंप्लीट दैट पर्पज. अगर उस रास्ते में कोई आ रहा है, उनको मदद चाहिए, चलो. हाउ पीपल रिमेम्बर अस, हाउ, अगर कहीं पर भी जाएंगे तो हमको कैसे याद रखेंगे? आई एम नॉट अंबानी अदानी, बट मुझे 100% लोग याद रखेगा, बिकॉज आई ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेस. टाइम बीइंग के लिए वो बोलते हैं, मैम आप रहोगे तो हम लोगों को ना बहुत खुशी हो जाती है. आप जो बोलते हो ना, हमको कहीं ना कहीं रिलैक्स लगने लगता है. व्हाई? दैट एनर्जी व्हाट यू आर पासिंग थ्रू. तो यही है. तो आप सबको अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो हम लोग करेंगे. देखिए एनर्जी कैसे होता है. ये एनर्जी विद इन अस. हम भागते हैं भागते हैं भागते हैं. तो ये हम लोग डे टू डे करते हैं सर. तो अगर स्टार्ट करेंगे सब लोग अपने से, तो मुझे लगता है कि चेंज होता है. क्या बोलते हैं आप, ट्रायल एंड टेस्ट. आप डालो अपने आप को 3 मंथ के लिए. यू स्टार्ट मूविंग, एवरीथिंग स्टार्ट मूविंग. मुझे पता है वो जहां बैठ गए हम, कुछ नहीं होगा. ये तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है. चलिए ये है कि मेरे लिए यही है स्पेशली. थैंक यू कुलकर्णी सर. Yes, हैप्पीनेस thank you. Thank you so much, ma'am. अल्टीमेट स्पिरिचुअल सॉर्ड है जो आता है. और वो हैप्पीनेस, अगर हम हैप्पी रहेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत हमको तोड़ नहीं सकता है. ये तो मैं जान चुकी हूँ. मैंने बोला ना, इवन एट द एज ऑफ 23, यंग एज में मैं अंडरवेंट ओपन हार्ट सर्जरी. 9 एक्सीडेंट्स हुए, but still I am alive and God has kept me for some purpose. Let him complete. I'll not work. He is working with me. That is the thing. You are really an inspiration, ma'am, because Yes, and Sunny. as I Thank you said, for you should giving write this a book on opportunity. this, your experiences. Sure, sir. And Thank you. we are really grateful for your session. And what I personally learn from the session is we always talk a lot. हम काफी बात करते हैं कि हम सबको पता है, मतलब आपने जो बताया वो हम पहले से हमें बताया गया है कि समय से उठना चाहिए मॉर्निंग में, या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए. बट वो ऐसा है ना कि किसी डिश के बारे में आप कितना भी बात करो, जब तक आप जब उसको तक खाओगे नहीं तब तक खाओगे यू नहीं. Yes. डोंट नो इट. द प्रूफ ऑफ देखिए, पुडिंग इज इन ईटिंग. अभी तो एक टास्क है आप लोगों को. जब भी आप कोई भी चीज खाओगे ना, पहले उसके अरोमा चेक करो. तो श्योर. उससे पता चलेगा एक्चुअली. यस. जी. So जी सर. definitely we will start working on it, जी. because action is more important. And यस. second thing, as you said, कि being in present, because eating भी है तो उसमें presence में रह के अगर करते हैं तो I guess that will be more healthy for us. यस. यस सर. यस सर. अगर बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो. पूछ सकते हैं आराम से. हेलो, एम आई ऑडिबल सर? यस यस. या, तो मुझे सिर्फ यही बोलना था मैम कि आपके सेशन से मुझे एक टेक अवे मिला कि हम हर रोज जो बहुत सारी चीजें ख्याल हमारे मन में आते हैं, तो हम उसी के साथ सो जाते हैं और उसी के साथ वापस से उठते हैं. तो इससे एक चीज तो मुझे पता चली कि हमें सुबह उठ के, जो आपने जो रूटीन बताया कि सुबह उठ के हमें नेचर के साथ पंच चक्कर. करना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए,
कि खुद हमने क्या क्या चीजें की और क्या चीजें हमें आगे जाके करनी है। तो Yes, sir. और आपने जो एक चीज बताई थी मैम, जैसे कि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर Yes, काम yes, sir. करती है। तो Yes, sir. अवेयरनेस के लिए हम जाते थे, तो वहां पे हमें बहुत सारी केसेस वगैरह मिलती थी। तो उनसे बात करके हमें ऐसा होता था कि हमें भी बहुत बर्नआउट होता था, और उसके लिए हमें भी खुद को भी बहुत सारे काउंसलिंग हाँ सेशंस भी लेने पड़ते थे, और हाँ मैंने लिए भी है। हाँ, that's लेकिन right. तब, हाँ, तब मुझे नहीं पता था कि ऐसे हम अगर चीजें करते रहेंगे हाँ, तो हम वो चीजों से अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, कि yes, हम sir. हर रोज रिफ्रेश होके जाएंगे तो हम हमारी चीजें हमारी तरफ रख सकते हैं, और जो दूसरों को भी हेल्प अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको और एक टिप और एक देती हूँ मैं। कहीं पर भी जाओगे ना मॉर्निंग, किसी से बात मत करो, अपने से बात करो, अपने से जॉय रहो, जस्ट वॉक एंड ऑब्जर्व, जस्ट या वॉक एंड ऑब्जर्व, अदरवाइज सिट एंड ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्वेशन है ना, हमको बहुत कुछ सिखाता है। आई जस्ट, कभी कुछ हो गया डेफिनेटली। ना, समझिए मेरा माइंड यहाँ बहुत खराब चल रहा है, कहीं बहुत प्रेशर आ गया है, आई जस्ट लीव दैट प्लेस। पहले नेगेटिविटी वाला जो प्लेस है उसके उससे बाहर निकलती हूँ, उस जोन से जाके कहीं नेचर में ना बीच में बैठती हूँ। I take deep breath. Then I just concentrate on some plants, flowers या कोई भी है, कुछ भी है। I will just change my mind or my view from there to I shift बोलते हैं इसको, changing shifts। या तो उसमें क्या होता है, बहुत आता है, आप ये भी ट्राई कर लो। ओके। या डेफिनेटली मैम। जी जी। एंड इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी फिलहाल तो मैं उस फील्ड में अभी इतना काम नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद के जी ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि ये बात नहीं कर रहे या कुछ अलग बिहेवियर हो गया, तो उनके लिए मैं जस्ट एक टेक अवे मैसेज लिख के रखता हूँ, और हैंड रिटन मैसेज लिख के उनको फोटोग्राफ करके मीन्स फोटोग्राफ खींच के उनको डाल देता हूँ। तो गुड दे गुड गुड, फील सो very रिवील happy. लाइक Yes, yes, yes. Really, we have to do something like this way. Then only that, what you say, उनको रिफ्रेश करते हैं हम लोग अपनी एनर्जी से। या इसीलिए वी हैव टू क्लेंज आवर एनर्जी डेली। आप यस मॉर्निंग एनर्जी यूनिवर्स से ले लीजिएगा और आप उसको बांटते रहिए दिन भर, तो अगेन वी कैन। राइट जी जी, यस सर, थैंक यू, थैंक यू। And just here, I want to share one more fact actually. यस सर, So research is proving that act of kindness is a win-win-win strategy. Means let's say अल्टीमेट, if I am doing act of kindness, that's good for me, and it's research proven. Okay, इट्स, I am doing kindness to someone, that is helpful for them also. यस And यस even a person who is just observing the act of kindness, यस he is not receiving and he is not doing it, but just यस, observing also gives the same effect. इफेक्ट, So it's यस। always better for all. एंड वन मोर थिंग आई टेल, दिवाली होता है तो कम से कम 70 स्टाफ है हमारे यहाँ पे, इंक्लूडिंग 70 स्टाफ में आई जस्ट 2 रुपीज का वो क्या बोलते हैं आप, चॉकलेट्स है ना, Mhm. चॉकलेट्स, 2 कैंडल, एक छोटा सा नन्ना सा पोटली बैग और उसमें एक छोटा सा मैसेज आई शेयर विथ एवरीवन। दे वर वेरी हैप्पी। वो बोले 50 साल हो गए मैम यहाँ पर, कोई हमको आज तक गिफ्ट नहीं दिया एंड यू आर गिविंग। तो मैंने बोला this is actually real Diwali. Okay, this is my Diwali. Means I am not going to purchase anything, but this is what I spread the वो लोग सब लोग वो बोलते हैं, आज भी यही बोलते हैं कि वो मैडम है ना, वो कुछ ना कुछ देती रहती है। नहीं, देना नहीं है, वो जो स्माइल आता है, जो खुशी आती है, दैट आई मेक मी वेरी हैप्पी। Right. जी, ये सर, कोई Yes. पूछेंगे क्या? और कोई अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन एनीथिंग you want to know. Yes, so I guess that's it. And Yes, sir. most of the question you already cleared Yes, during the session. So yes, sir. yes, thank you. Thank you so much, ma'am, from all of Thank you, us. sir. And Yeah. on this occasion, as Suicide Prevention Month, what all of us can do is, of course, first priority is ourselves. Yes. Improving our emotional health is the first priority because, like in aeroplane, they say, no, uh,
first put mask to yourself and then you Yes. help your neighbor, Yes, right? yes, So like in that. the same way for emotional health as well, first catering for ourselves and then only we can support others. Sure, sure, sure. And taking professional help is always better. So if you see some distress sound, so always do your bit, but also break the Yes. stigma. So that's इफ something. मेरा जो भी मैसेज है, क्योंकि मैं क्यों इधर उधर से नहीं बताई, अपने ही लाइफ का बहुत सारा सिचुएशन भी इसलिए बताई कि हम लोग जी सकते हैं, प्रॉब्लम में भी जी सकते हैं, प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं कि हमको हारना है, हारने से हम हार ही जाएंगे। अगर रहेंगे तो हार के जीत के बाजीगर भी कहला सकते हैं, तो यही है मेरा। ओके, तो ऐसा ही मैं भी जीती हूँ। सो होप, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, इवन एक्सप्लोरिंग माय व्यूज के लिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल हु हैज कनेक्टेड विथ मी। इफ इन फ्यूचर एनीबडी नीड, नो आई नेवर चार्ज एनीथिंग, just a call, at least they will feel okay concerned. So thank you sir. Okay. Thank you, ma'am. Oh, Really okay. appreciate from my heart. Yes, thank you. Thank you, ma'am. Yes, thank you, sir.